I don't think कि ये कोई choice है. It's rather somewhere he is the जो person who is compelled to think like that, he is already suffering from backlogs, some life में कुछ गड़बड़ चल रहा है काफी महीनों से, काफी सालों से. They are not getting proper attention from their loved ones. तो ये सब होता है तो maybe they take that extreme step. So it is not a personal choice because I think it is a crime to commit a suicide. It is a crime because जान देना is like you can do suicide, but what is affecting after your death? What जो आप पीछे छोड़ के जाते हो that is not curable. So इसीलिए it is considered as a crime. So I don't think ये as a choice लेना चाहिए because this is somewhere when things are going wrong and we are not able to improve it. मैं I think you can try with some good people या good friends या good psychiatrists. जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए उस वक्त. That's what my take on that. Personal choice as such, it's not a personal choice really, but वो एक डेवलप हो जाता है कि मैं अभी आगे नहीं कर पाऊंगा, so it's better मेरा I conclude. क्वेश्चन इज मोर लाइक मुझे अपने जान लेना है, मैंने ले लिया, क्या कर लेगा कोई? So that's what I meant by personal choice. Okay, let's take others comment. Shyama sir has joined. So what do you think, Shyama sir? His question is, can we think suicide as a personal choice? तो मेरा मन किया, मैंने अपनी जान ले ली, दूसरे को क्या लेना देना इससे? You see, this is a very big topic, honestly, and I'm working on it, and I do not know how much I can answer, but I will give it a try. You see, suicide is a definitely a depression case, and that is the ultimate choice people make to end the life. So this is something which is not in their hand even. In this kind of a situation, they are not being able to decide even that what is right or what is wrong. They are just inclined to end the life. I saw quite a few suicide cases actually, and which affected me so much. And this news really disturbs me so much. I saw 2 suicide cases in my college, and then one more where I was working in Thailand. Another one I saw in Malaysia. Then the last I saw very close to one who was my daughter's department head in Cleveland Clinic in USA hospital. Okay, a very nice doctor. Means I just met him few months back and he committed this suicide. Very nice gentleman. Nobody can understand from outside what is going on. Very smiling, very sporty. Means they come in different forms, this depression, and it is very difficult to say that why they take that course of action. But that's the ultimate consequence of depression. And I have seen that as soon as people get into the spiral, like अपना जो वो एक्ट्रेस है ना, क्या नाम है, Deepika Padukone. Deepika Padukone had a severe depression case, okay? Means somehow she fought it out. And then there are many unfortunate people who cannot fight it out. So depression, question क्या था विशाल? क्वेश्चन है कि मतलब मेरा मन किया, मैंने दुनिया को टाटा बाय बाय बोला, दूसरे को क्या लेना देना? मैं थोड़ी पूछ के कोई सुसाइड करेगा? I mean, that's the question. Can it be a personal choice, just like wearing clothes, you know, what we eat and things like that, which is usually a personal choice?
can taking our own life be also a personal choice? पर्सनल चॉइस तो होता है, बट दैट इज इन ए डिफरेंट इमोशनल स्टेट. यू सी, आज अगर कोई नॉर्मल आदमी को बोलेगा कि भाई तुम सुसाइड कर दो, थोड़ी ना करेगा वो. सो दे गेट इनटू सच काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट that they even do not know what is wrong or right, and they feel this is the right direction. You know, they feel that my all ammunitions are now exhausted, this is the right direction now, which is completely wrong actually. And with that wrong notion, they create their emotional state in that manner and they take the decision. So it's a very unfortunate thing, honestly, what is going on with the humanity, but that's how it is. And Sejal has some comment. Please, Sejal. So suicide is definitely a personal choice, and rather we can say it is as a personal decision. और इसका कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से अगर रिलेट करें तो जो सुसाइड का डिसीजन लेने का जब भी पॉइंट आता है तो उसमें हम सोसाइटी से या तो थक जाते हैं, सोसाइटी इवन इंक्लूड्स आवर फैमिली, उससे थक जाते हैं एंड हम उस एक्सट्रीम मेंटल स्टेट पे पहुंच जाते हैं जब वी कांट फाइंड सॉल्यूशन टू इट. तो सुसाइड करने वाले इंसान के पास उस टाइम दो ही ऑप्शन होते हैं, टू फाइट और टू रन आउट ऑफ इट. तो जो सुसाइड करता है वो उससे भागने की कोशिश करता है. तो यस, इट्स अ पर्सनल चॉइस. आपके पास दो ऑल्टरनेटिव होते हैं, either to live your life and fight against the whatever is happening, or you can like make your die. Yes, sir. Yes, Atul sir, please. तो like many other things, सेजल और हमारे विचार थोड़े अदर साइड पे होते हैं. मेरा मानना है कि suicide is not a personal choice. Suicide is a murder. Whether you're murdering somebody else or you're murdering yourself, because ultimately we owe it to the society, अपने family, अपने parents, अपने relatives के लिए, दोस्तों के लिए, कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो केवल अपने लिए जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं. We are doing for the society. तो अगर हमने किसी की जान ले ली, if I murder somebody, तो that's a crime. और हमने खुद की जान ले ली, that's also a crime. I need to take permission from the society. I need to take permission from my spouse or my parents कि मैं अपनी जान लेना देना चाहता हूँ, and should I take it? And most likely 100% case you won't get permission and you cannot. Problems हैं, face it. Challenges हैं, face it. Help मांगो, कुछ भी करो, but running away from the situation is not a solution in my view. Okay. Ankita wants to say something. You are unmuted. Ankita Jain. Hello. अभिषेक बोल अभिषेक. विशाल सर, yes. ये हमें इस टॉपिक का डिमांड किए थे. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. पर्सनल चॉइस पे बात है. आपको बहुत चीज सिखाना है. यस, अभी एक क्या चल रहा है, इसको बोलना है कि सोसाइटी के बारे में क्या बोल रहे थे. पर्सनल चॉइस अपना चॉइस है. मेरा मन किया है, मैंने अपनी जान ले ली. किसी को नहीं, पर्सनल चॉइस हम इसको नहीं मानते हैं. एक तो मतलब हम कल परसों से बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि सुसाइड करना एक कायरता का काम होता है, पर ये मेरा थिंकिंग नहीं है. 99% सुसाइड करना कायरता का काम नहीं होता है, वो हिम्मत का काम होता है, क्योंकि सबका औकात नहीं रहता है वो खुद को मारने के लिए. इतना ये मतलब क्या बोलते हैं, जितना लोग आसान समझते हैं कि वो कायर था, सुशांत सिंह राजपूत को कोई कायर नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना बड़ा वो रिस्क लिया है. आप समझ सकते हैं, EIEEE में 7th रैंक लाया, उसके बाद 4th ईयर में कॉलेज छोड़ा, बहुत बड़ा रिस्क. टीवी में आया, टीवी छोड़कर मूवी में गया, उसको पास पैसा, नाम, शोहरत, हर चीज था. शायद उससे भी कोई चीज बड़ा होता है जो उसके पास नहीं था, उसको सह नहीं पाया, तभी तो वो किया. तो आई थिंक इंसान को मतलब कभी कभी ऐसा क्षण आता है ना कि लगता है कि अब आगे क्या करें, आगे मेरे पास वो कुछ नहीं है सिवाय मौत. बहुत आदमी को ऐसा लगता है कि अब आगे क्या करें. जैसे मेरा ही जेई का रिजल्ट नहीं आ पाया था,
तो हमको खुद समझ में नहीं आता था। हम दिन भर वेट किए थे पटना का महावीर मंदिर में कि अरे मेरा रिजल्ट आने वाला है। इसके प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है, रिजल्ट आने से पहले 50 बार कॉल करेंगे, आया कि नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं। फिर आई थिंक हम भी सोचें कि हमको भी सुसाइड करना चाहिए। गए, फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, 30 रुपया का माजा का बोतल खरीदे, पिए और वापस घर आ गए। बस यही तो करना है, यही तो करना है अभिषेक। 3000 का कुछ और नहीं खरीदा है। ओके नहीं मतलब एक होता है ना, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आते हैं उस पे हम भी तो आते मानते हैं। आई थिंक अभी एक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि अपना चॉइस है कि नहीं। सो नीरज वांट टू से समथिंग। यस नीरज प्लीज। यस मेरा जो है, अतुल सर ने जो बोला और अभिषेक ने जो बोला उसी पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सुसाइड पर्सनल चॉइस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। अगर किसी को लगता है तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत है इसके बारे में। आपके अराउंड इतने सारे लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब जिस चीज को आप चाहते हो, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, वो नहीं मिली तो सब खत्म हो गया। थोड़ा सा दूसरे एंगल से अगर सोचे तो आपको चाहने वाले भी मिलेंगे, आपसे प्यार करने वाले भी मिलेंगे, और कुछ वो लोग भी होंगे जिनको आपसे कुछ उम्मीदें हैं। तो इस तरह का अगर दूसरे एंगल से सोचे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी। और हमेशा आपके अगर कहीं पे भी इस तरह की थॉट्स है माइंड में कि मेरी चॉइस है, ये है वो है, आप तब अगर ऐसा सोच रहे हैं मेरी चॉइस है, तो आप फिर थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा आप सेल्फिश होके सोच रहे हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो नहीं हो रहा है तो मेरी चॉइस है। आप थोड़ा सा दूसरे के नजरिए से सोचिए कि दूसरों की भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, दूसरों की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। तो उस नजरिए से सोचेंगे तो आप कभी भी इससे बाहर आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो पर्सनल चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आपको इस धरती पे लेके आए हैं, जिन्होंने आपके साथ समय बिताया है, अच्छे पल बिताए हैं, उनके बारे में सोचेंगे तो इट्स नॉट योर चॉइस। मिस्टर रवि, यस प्लीज योर कमेंट। Yes. So the first point is कि yes, suicide is not a personal choice, क्योंकि एक और शब्द है suicide के ही paraphrase में, euthanasia, that is a process when you make a self choice to die. So that is a word which is used for self choice, but suicide, of course, it is not a self choice. This is more of external factor which instinct a persons to go into that. See, suicide से पहले the hallucination of mind start happening. So people start dissociating himself from the world itself कि सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है, and वो कारण कहीं ना कहीं अपनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा मतलब अपने लोगों की वजह से ही they start dissociating and then get into this kind of mindset. There are few cases जहाँ पे maybe losses का केस रहता है, लेकिन again in all those platforms also this has been general studies has been given by a lot of the research and development centers कि most of the cases में उनका जो एसोसिएशन है ह्यूमन लेवल पे अपने लोगों के साथ में बहुत कम हो जाता है, और जो भी फियर उनके अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग को और ज्यादा डीप थिंकिंग में लेके चले जाता है। मतलब बाय द टाइम दे कीप गेटिंग इनटू डीप थॉट्स कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड देन और ज्यादा होते होते दैट इज अ फ्रेमवर्क वेयर दे डिसाइड टू गिव अप। एंड व्हेन दे रीच टू दैट स्टेट, even that person, if you have interactions, they do not have any idea. जैसे अभिषेक जी बोल रहे थे कि एक बहुत गट्स चाहिए, इट्स नॉट अबाउट गट्स, लेकिन उस समय माइंड का थिंकिंग होता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ समय पहले, लेट से हाफ एन आवर और 45 मिनट्स पहले जो आप सोचते रहते, उसके डीप थिंकिंग में जाते जाते वो चीज आप भूल जाते कि आप क्या कर रहे हैं। एंड उस टाइम में जो सीन होता है कि नाउ आई हैव टू एंड इट अप एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं आप एक ये भी डिसीजंस में आ जाते हैं कि आई हैव टू एंड इट एनी हाउ, चाहे ये जन्म में करूं, मुझे करना ही है। सो दैट प्रोसेस मेक अ पर्सन टू गो इनटू दैट सिनेरियो, और फिर वो मतलब प्रोसेस कर लेता है, हैंगिंग तैयार कर लेता है, एंड ही वेंट टू दैट थिंग्स, और
वो टेबल को माना एंड देयर आफ्टर ही डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, सो वो लाइफ चला जाता है उसके बाद. एंड देन पीपल डू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन वो जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स या 45 मिनट्स का इंस्टेंसेस होता है, that is exclusive with the mind. And there are few examples which I have seen very closely. मैं गोवा में रेसिडेंट कर रहा था एंड वी हैड अ सुसाइड किट इन दी सोसाइटी इटसेल्फ. तो एक हस्बैंड और वाइफ थे और उनके घर में ग्रैंड मदर और पेरेंट्स थे. तो सिर्फ लेडीज ही थी, जेंट्स नहीं थे. और वाइफ का हस्बैंड के साथ में कुछ हल्का फुल्का जस्ट माइनर अनबन हुआ, एंड मे बी दोज थिंग्स वी आर हैपनिंग सिंस लॉन्ग टाइम और व्हाट आई डोंट नो. लेकिन वो माइनर अर्बन हुआ, हस्बैंड जस्ट मूव्ड आउट फ्रॉम द हाउस. वो घर से सिर्फ निकला और 10 मिनट्स के अंदर में सी हैंग हरसेल्फ, एंड देन पुलिस एंड ऑल दोस केसेस. लेकिन इसका रिवर्स ये है कि अगर वो बंदा वहां पे रह जाता तो सिनेरियो कुछ और रहता. मे बी सुशांत के केस में ही उसका सिस्टर कंटिन्यूअस 5-6 दिनों से उसके साथ में थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो टाइम पे नहीं था एंड देन ही हैंग हरसेल्फ. लेकिन पर्टिकुलर टू दिस केस ये भी है कि एक ये भी न्यूज आ रहा है कि there are lot of big fats in industries who denied him, like Yash Raj, Karan Johar and all those people, Salman Khan and everything, they have denied Sushant as of giving the works, and because of it the pressure started building on him in terms of economical things. That is one news which is coming from inside the fraternity. And also the career path which he chose. In fact, the film industry is very highly depressive industry, though we see it as a very lucrative and fluent industry in terms of money, but the persons who be in it, they are at high risk in terms of depressions. You read about anybody, they one time or the other time of the life they went under this phase of depressions, and many moved out, but few who succumbed to these situations and results like this. So I want to say something on this very relevant कि सुशांत का मर्डर, सुशांत का डेथ, सुसाइड, ऑब्वियसली सुशांत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इतने इम्पोर्टेंट टैलेंटेड इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. उसकी फैमिली अगर सुशांत से टच में नहीं थी तो फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली ने अपने इतने लायक बेटे को कैसे इग्नोर कर. उसके मम्मी नहीं थी तो वो एक रीजन बोलते हैं कि लोग 19 साल से मम्मी को मिस कर देते. बट सुशांत के दोस्त कहाँ थे, सुशांत के जो साथ वाले लोग कहाँ थे? अगर सुशांत ने उनको नहीं रखा, बताया कल, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पता करना चाहिए. और मैं हम सभी को बोलता हूँ आपस में कि हमारे किसी फ्रेंड ने या फैमिली ने सुसाइड किया तो we should also feel guilty about it. We should feel punish ourselves, because मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई भाई या कोई दोस्त मतलब कोई अगर इस टफ सिचुएशन के थ्रू जा रहा है और सोच भी रहा है कि सुसाइड कर ले, तो इट्स माय जॉब टू मेक श्योर कि इट डजंट हैपन. मैं उसको जैसे भी उसको उसकी डिप्रेशन हो, उसकी मोरल डाउन है या उसको सेटबैक लगा या फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जिस तरह से भी, टू सेव दैट पर्सन is my responsibility, not complete responsibility. Complete responsibility is again with the person. Ultimately, he owns it. But उसके आसपास के लोगों की responsibility, फिल्म इंडस्ट्री की भी responsibility है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्री में कंपटीशन तो होता है, एंड हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स भी आता है, एंड हाई फेलियर का हाई कॉस्ट भी होता है. तो सुशांत was a reasonably success guy. He was not अमिताभ बच्चन और आमिर खान, शाहरुख खान, but he was a reasonably successful. धोनी का रोल प्ले किया उसने, बहुत बड़ा रोल था उसका. तो आई थिंक कि सोसाइटी एंड सुशांत दोनों की थी, ज्यादा सुशांत की, लेकिन सोसाइटी की भी थोड़ी सी. यस सर, प्लीज. ओके, सो मैंने ये बात पहले भी कहा है कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन द पावर ऑफ माइंड. इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माइंड है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कितना शक्तिशाली है. और रवि जी ने आई थिंक ये पॉइंट रखा, ही स्पोक लिटिल बिट ऑन माइंड. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, एंड यू स्टार्टेड जजिंग योरसेल्फ, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट दैट आल्सो कैन बी डिस्कस्ड, and there are multiple ways also how you can overcome or increase your
सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो जो आपका क्वेश्चन है कि whether it is a individual choice or not, this question is invalid because उस स्टेट ऑफ माइंड में दिमाग काम नहीं करता है. और अगर आपके दिमाग ने ठान लिया कि मुझे कल मर जाना है तो मैं मर जाऊंगा. सो ये क्वेश्चन उस बंदे के लिए नहीं है. हम लोग बहस कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअली द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, he doesn't have any control of his own mind, and he cannot, or he has 100% control of his mind, and he will do what he wants, whether it is suicide or running a startup or I don't know what not, Kill flying in the someone. air. I mean, So killing oneself or killing someone Yeah. else maybe. so उसका In दिमाग that state काम of नहीं कर रहा है. तो हम बहुत लोगों ने ये कहा कि उसको अपने बारे में सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे के बारे में सोचना चाहिए. यार वो सोचने के he has gone State beyond में that नहीं है. level. वो सोच ही नहीं Yeah. सकता है. So solution ये है ही नहीं कि सेल्फिश है या नहीं है. He cannot think. Mhm. So this is what I wanted to say. Kind Yeah. of mild sickness, I don't know, like extreme sickness maybe. No, as I was mentioning, that it is a Mhm. consequence of acute depression. Mhm. It is the final consequence of acute depression. So as Saurabh said, so that's what I'm also saying, that in that state of mind he doesn't have any choice, or the choice he makes, he feels that it is right or wrong. We do not know in our normal state. You know? Shama ji, Or my or point maybe is, he thinks. Mhm. Sorry sir. मेरा Or maybe point he है ना, thinks कि एक मिनट क्या करेंगे? Yes, Atul sir, please. One line. मेरा पॉइंट ये है ना कि मैं अपने माइंड में डिप्रेशन में हूँ, मैं गंदे मूड में हूँ, गुस्से में हूँ, जो भी कारण है, बट अचानक मैं गोली उठाकर किसी को मार दूंगा तो विल सोसाइटी जस्टिफाई इट? नो. तो आपने वही काम किया, किसी और को मारने के जगह आपने सुशांत को मार दिया, सुशांत ने सुशांत को मार दिया, बट आई टेक सुसाइड एज मर्डर. सुशांत मर्डर्ड सुशांत, एंड दैट्स नॉट राइट. No, it's not a question of right or wrong, Atul, here. You know, it's a disease. हाँ, it is a disease. Depression is a disease, and like cancer kills people, depression also kills people. बट So कुछ डिजीजेस here- खुद के here- चॉइस से. मैंने खुद को कुछ गलत काम किया तो मैं कल को रोड पे एक्सीडेंट कर देता हूँ, तो अपना भी जान लूंगा, दूसरों का भी लूंगा. तो सुशांत का जो काम है ना सर, उसका डिप्रेशन था, उसका जो भी रीजन था, वो द कॉजेस बिहाइंड इट. बट अल्टीमेटली फाइनल जो अकाउंटेबिलिटी में हमेशा majority of the ownership I will blame it to Sushant, whoever has murdered himself, and partially to the society and situation and everything else. You see, the same Sushant 3 years back, he will not do it, but he does it today. It's due to the different state of mind. हाँ, absolutely. Society में बहुत गड़बड़ है, mind में गड़बड़ है. It's a different state of mind. So, you know, blaming him, the person, that why he is taking that's not the thing to be discussed actually here. आपका मूड खराब है, आप किसी का मर्डर कर दीजिए, बोले कि नहीं, I was in a bad state of mood, mind, तो will it justify? No, he murdered. मैं सुशांत का बहुत बड़ा मैं फैन हूँ. मैं अपने फैमिली वाला भी कोई ऐसा करेगा तो I will say the same. मेरे फैमिली का बहुत closest to the close person will say, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पकड़ नहीं पाया, could not detect कि वो सुसाइडल हो रहा है. तो that's one thing. But अगर कोई कर रहा है ना, अगर जिसने गोली चलाई तो मैंने किसी को शूट किया, तो गोली चलाने वाला जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, वो सारे सेकेंडरी फैक्टर. द मेन फैक्टर इज द पर्सन हु शॉट द पर्सन. हेलो. Yes, Sejal has some comment. Yes, Sejal, पहले Sejal का, then I come to 3-4 हाथ उठ गए. Okay, Yes, sir. Sejal बताओ. मैंने पर्सनल चॉइस वाला जो पॉइंट बोला था वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि जब आप एक रूम में होते हो, ठीक है, उसी टाइम आप ये डिसाइड करते हो कि आपको सुसाइड करना है, तो उस टाइम भी आपके पास चॉइसेस होती हैं, बट यू मेक अ डिसीजन एंड यू चूज दैट वन थिंग. तो मैंने पर्सनल चॉइस उस कॉन्टेक्स्ट में So बोला. that way it's a personal And choice. and I मतलब murder agree is a to personal all the choice in speakers. general. किसी का भी मर्डर हो, किसी और का भी मर्डर कर रहे हैं तो मैं ही चूज कर रहा हूँ ना कि मार देना इसको, चलो ऐसे भी करते हैं. वही. And I agree to Saurabh sir's point कि उस टाइम जो माइंड का लेवल होता है, उस टाइम आप कुछ सोच नहीं पाते हो.
It's the extreme level and you don't have thoughts about it. या उस टाइम आप अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोच पाते हो. Even you don't think कि after you are gone what is gonna happen. मर्डर और मर्डर करने में तो पर्सनल चॉइस ही है. जो ये बात हो रही है कि आदमी सोच नहीं पाता है, मेरा इसके बारे में एक क्वेश्चन है. अभी विनीत जी ने बोला कि गोवा वाला जो केस बताया कि लड़ाई हुई, हस्बैंड बाहर चला गया तो वाइफ ने तुरंत वो स्टेप उठाया. तो कहीं ना कहीं वो उसने सोचा तो होगा उसके बारे में कि आज फिर से इसने मेरे साथ ये किया तो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं माइंड में थॉट प्रोसेस तो होता है. ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है आदमी, मैं नहीं मानता ऐसा. और सुसाइड नॉट ओनली हैपेंस लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले बहुत केस होते हैं कि लोग पिछले 6 महीने से वो प्लान कर रहा था, कुछ चल रहा था, 3 महीने से कुछ चल रहा था. लेकिन बहुत सारे केसेस में एकदम जो ये जैसे गोवा वाला केस बताया है, ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हुआ, लो मैंने कर दिया. मेरे सोनीपत में पड़ोस में एक बहुत पुराना बहुत नामी हॉस्पिटल था, उसके डॉक्टर ने किया था. हम बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे. तो उसका कुछ अपनी नर्स के साथ अफेयर था जो कि उसकी वाइफ ने पकड़ लिया हॉस्पिटल में और उसने तुरंत ऊपर जाके अपने आप को गोली मार दी. तो वो मेरे को नहीं लगता कि हर केस में ऐसा होता है कि ब्लैंक होके ही आदमी ये स्टेप उठाता है. कई बार बहुत थॉटफुल होके भी उठाता है और वो उसमें सोचने समझने की शक्ति रहती होगी ऐसा, ईगो में आके. एग्जैक्टली. रवि यस रवि, यू हैड सम कमेंट. या तो मेरा पॉइंट जो अभी नीरज भी उस पॉइंट को इटरेट किया, मैं वही है. अतुल सर के पॉइंट को भी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा काउंटर लगे, या फिर मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सुसाइड एक डिप्रेशन का पार्ट रहता है. वो डिप्रेशन या 10 मिनट में बने, 45 मिनट्स में बने और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने. एक अतुल सर भी इसमें मे बी एक थॉट देंगे. एक पर्सनल चॉइस का मैटर नहीं है, लेकिन आप देखिए गांव साइड में, हमारे मतलब बिहार साइड में पहले बहुत ही इशू प्रोमिनेंट आता था कि लेडीज ना बर्निंग केसेस बहुत आते थे. और उस पे एक एनजीओ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, काफी जो बर्निंग केसेस लाइव रह जाते थे, उनका एक सर्वे हुआ था. तो उसमें फैक्ट निकल के सामने आया था कि मोस्ट ऑफ द लेडी यूज टू से कि अगर मुझे उस टाइम पे कोई रोक लेता तो मैं नहीं करता. और बहुत सारे केसों में जहां पे सुसाइड होने वाला रहता है, रोक लेता है, तो देन लाइफ टेक्स अ चेंज. एक बहुत ही प्रोमिनेंटली वीडियो वायरल हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर. एक फास्ट ट्रेन आ रहा था और एक बंदा जस्ट जंप इन कर रहा था, एक लेडी बचा लेती है उसको. तो दैट इज इमोशंस कि मैं करने जा रहा हूँ, उस टाइम कोई रोक लेना तो दैट कैन बी स्टॉप्ड. लेकिन वो जानना एक अलग ही फीचर है, और ये हमेशा एक डिप्रेशन के बाद आता है. सी देयर इज वन मोर थिंग आफ्टर गोइंग इनटू डिप्रेशन के बाद में होता है. डिप्रेशन के स्टेट में जाने के बाद पीपल स्टार्टेड फीलिंग नम. आपने बहुत सारी कहानियां सुनी कि somebody स्टार्ट हिटिंग हिमसेल्फ. वो भी एक प्री कॉन्शियस माइंड है सुसाइडल का, कि मतलब मैं खुद को ही जिम्मेवार. इन ऑल दिस केसेस ये होता है कि पर्टिकुलरली जो पर्सन है वो ही स्टार्ट ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर ऑल दिस रीजन, एनी रीजन विच इज हैपनिंग अराउंड, ही स्टार्टेड ब्लेमिंग हिमसेल्फ. और वो इसी कारण से कहीं ना कहीं वो चीजें फिर बिल्डअप होने आती. और सोच नम नहीं होता है, सोच बहुत हद तक डीप में चला जाता है, वेयर ही फील्स लाइक दिस इज द अल्टीमेट. इसके बाद मतलब दिस इज द आंसर टू माय एग्जिस्टेंस, दैट्स ऑल. ये नहीं करूंगा तो नहीं होगा. यस यस. वो बोल रहे थे कि जैसे हम आज इस सोच रहे थे तो 3-4 चीज पे इस सोचे कि आखिर लोग वो सुसाइड करते क्यों हैं. ठीक है, तो एक एक करके बताना चाहेंगे कि फर्स्ट हमको क्या लगा कि उस टाइप के लोग मतलब जल्दी सुसाइड करते हैं या ज्यादा सुसाइड करते हैं जो मतलब ठान लेते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल कि हमको आईएएस बनना है, मीन्स आईएएस ही बनना है, उसके अलावा हमको वो कुछ नहीं चाहिए. और जो लोग का मतलब 3-4 जगह पे होता है कि अरे भाई आईएएस नहीं बने तो वो क्या हुआ, वीडियो ही बन गए, या उससे मतलब एग्जैक्टली जिसके पास बैकअप प्लान रहता है कि मेरा आईआईटी नहीं हुआ तो हम एनआईटी में भी पढ़ सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों का होता है कि हमको आईआईटी में ही पढ़ना है, नहीं तो उसके बाद मेरा जीवन फालतू है. तो उस टाइप के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं. सेकेंड चीज हम क्या देखें कि एक
होता नहीं कि लोगों का एक्सपेक्टेशन और बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितना प्रेशर आ रहा है, ये सब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो है ना अपना ड्रीम जो है बच्चों के ऊपर थोपते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा रीजन है इस सुसाइड करने का। दूसरे का लड़का ये कर रहा है तो तुम भी करो। और हर क्या है गांव साइड में बेसिकली पड़ोसी सब, पता नहीं शहर में हम तो रहे नहीं, पड़ोसी जो जो होता है ना 90% बनता है उस सुसाइड का कारण। तुम्हारा बाप पढ़ा रहा था, तुम क्या कर लिए पढ़ लिख के। एक होता नहीं इंसान सोचता है कि अरे मेरा बाप का भी नाम खराब हो रहा है, हम जी के क्या करेंगे, मेरे कारण मेरा मेरा फैमिली वालों को तकलीफ हो रहा है। तो ये 2-3 रीजन है जिससे लोग मतलब ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो अभिषेक, मेरा पॉइंट ये है ना कि हम पूरी दुनिया को ब्लेम कर सकते हैं। मैच हार गए, धोनी मैच हार गया तो उसका तबीयत खराब था, या बादल ज्यादा था, हवा तेज चल रहा था, उल्टी हो गया था, हजारों एक्सक्यूज दे सकते हैं। बट अगर आप खराब, आपका जो अच्छा परफॉर्मेंस आप रिस्पॉन्सिबल है, खराब परफॉर्मेंस आप रिस्पॉन्सिबल है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने उस दिन गलत किया और गलत परफॉर्मेंस किया। उसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, सोसाइटी हो, फैमिली हो, लेके फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है। बट अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट मी। मेरे काम के लिए मैं दुनिया को रिस्पॉन्सिबल बना ही नहीं सकता हूँ। इसमें हम बता देंगे सुशांत सिंह राजपूत, एक पॉइंट हम बताना भूल गए। आज के समय में एक होता है नहीं कास्टिज्म, जैसे आपके बगल में आपका दोस्त बैठ रहा है, वो लोअर कास्ट का है, ठीक है, उसका कम मार्क्स आया, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, लेकिन आपका उसमें क्या फॉल्ट है कि आप अपर कास्ट के हैं, आपको नहीं मिल पाता है। तो लोग भी सोचते हैं कि अरे मेरे से पढ़ने में बकलोल था और इसको इतना अच्छा जॉब हो गया, ड्यू टू कि वो एक निचले वर्ग का था। और सेकेंड चीज जो है मतलब होता है नहीं खानदानी, वो पुश्तैनी चला आ रहा है, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, यानी आप एक कपूर फैमिली के हैं, कोई बड़ा आपका बैकग्राउंड है, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। और जो ये न्यूज आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मेरे को तो पूरा सही लग रहा है। क्योंकि एक करण जौहर का प्रोडक्शन हो गया, सलमान खान का हो गया, वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बैन लगा चुका था कि उसके तरफ से उसको वो मूवी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो एक उभरता हुआ सितारा था, उसको लोग सह नहीं पा रहे थे कि इतना छोटा शहर से आया, छोटा जगह से आया, इतना वो सुपरस्टार वो कैसे हो जा रहा है। यहाँ तक कि जो भी अवार्ड फंक्शन होता है, अवार्ड पहले ही खरीद लिया जाता है, जो वो फालतू मूवी है उसको भी विनर अवार्ड दे दिया जाता है। नहीं, ये पॉइंट तो ठीक है जो बोल रहे हो, बट ये सुसाइड के लिए नहीं हो सकता, इसके लिए दुखी हो सकता है इंसान, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर सकता है, बट सुसाइड नहीं करना चाहिए। यस अमन, हाँ अमन, यू वांट टू से समथिंग? ये अनुज सर कुछ वो बोल रहे हैं हाँ बताइए। चलिए, अमन कौन है वो बोल रहे हैं पहले। अच्छा, अमन बोल रहे पहले, फिर अनुज सर बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा इसमें से ये कॉन्टेक्स्ट है कि हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं पर्सनल और सेल्फिश का। तो मेरा एक चीज है कि जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं ना, तो ऐसे तो ये पूरी सोसाइटी का या फिर सोशल कॉज होता है, ये केवल हमारा कॉज नहीं होता कि हम सुसाइड कर लें। बट हम जिस सिचुएशन में रहते हैं ना, वो पूरी तरह से एक पर्सनल कॉज होता है, क्योंकि हमें उस टाइम पता ही नहीं रहता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब कोई भी चीज पता नहीं होता। केवल हमें अपना सोचता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम से, मेरे पास वो प्रॉब्लम से, मुझे ये सारी चीजें होंगी, अगर रहा अभी जिंदा रहा तो मेरे साथ और भी बहुत सारी चीजें बुरा हो सकता है, ठीक है, या फिर बहुत चीज खराब हो सकता है, ठीक है। तो एक ये चीज है कि अगर खुद के कॉन्टेक्स्ट में देखें या फिर उसकी जो डिसीजन है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये पूरी तरह से ये पर्सनल कॉज होता है। बट आप लोग कह रहे हैं कि ये सोसाइटी कॉज, ये बिल्कुल है कि आपको माँ बाप का सोचना चाहिए, फ्रेंड सर्कल का सोचना चाहिए, बट उस टाइम पे उसके लिए वो चीज सही नहीं था। दूसरी चीज ये कि मैं एक तरह से इससे देख रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खाली बैठा दिमाग शैतान का होता है, ठीक है, राइट।
तो आपको इस समय लॉकडाउन के चलते आपने देखा होगा काफी सारे लोग इसमें एंजाइटी, फियर, काफी सारी चीजें, डिप्रेशन इसलिए फियर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ना कोई दोस्त है मिलने वाला, जो पहले कभी गलती से भी कहीं मार्केट जाते थे, कभी कुछ सामान लेने चल गया तो कोई मिल गया, वहां बात कर लेते थे। बट अब इस टाइम पे क्या हुआ, ना आपके पास काम है, ना आपके पास बाहर जाने के लिए मार्केट है, ना आपके दोस्त है, केवल आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, जो भी चीजें हैं वो केवल उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और वो चीज जो है आपको नहीं मिल पाती, और ये आपको कॉज होता है। और दूसरी चीज ये कि आजकल ये चीज हो गई है, जैसे कि अभिषेक अभिषेक जी ने भी काफी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए इसमें कि आप लोग एक दूसरे से मतलब फियरफुल हो रहे हैं। लाइक आप देखा कि काफी सारे बच्चे सर्टिफिकेट्स कुछ कोर्स कर रहा है, मैं जस्ट स्टूडेंट बता रहा हूँ, कोई कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर लिए, कोई लोग अच्छा पढ़ाई करके मतलब कुछ अच्छा निकाल लिया। बट आपको लग रहा है कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, 3 महीने 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ में, मतलब तो वो एक धीरे धीरे एक बड़ा कॉज बनते जाता है, और वो एक लगता है आपकी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों से मिलते रहना चाहिए कि आप जो वो प्रिपरेशन हो वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके। या थैंक यू। Yes, या Anu sir, please. अनु सर। Hello. Yeah, I have come especially after a long time because I saw that Vishal had put this topic, and I especially wanted to understand ki I also have a son at home, and there is a lot of talk about that Sushant Singh. Honestly, मेरे को तो पता भी नहीं था कौन है सुशांत सिंह, but then जब देखा तो yes, he is very popular and all that. So I've been thinking about it. So I'll just quickly say a few things. Maybe I'm trying to address the youngsters here so that they understand the things better. So one is we as a society are very quick to judge others. तो मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे लोग they are judging Sushant Singh Rajput like as if they knew everything about him, or they, which in first instance is absolutely wrong and doing injustice to that poor chap. You know why? Because when you talk about suicide, suicide is an outcome of something going from your head to yourself, and that, so you have to look कि इसमें क्या चल रहा था. So there are two things. One is very important. Please note that जैसे physical form gets ill, so right now corona is something that is making people ill. Similarly, the brain also is susceptible to illnesses. So there is something called mental illness also, and there's nothing wrong in admitting that there is something called mental illness. And the other, so that is the physiological part, that is a thing which you cannot, that is a structural part of the brain, कि कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो वो हो जाती है लोगों को. देयर आर मेनी रीजंस फॉर देयर आर जेनेटिक रीजंस, देयर आर traumatic reasons, so many, so on and so forth. The other is the psychological reason, which you can call through maybe loneliness, the inability to cope with changes, sudden changes in life, setbacks, bereavements. बहुत सारी चीजें होती हैं which give a psychological trauma, to the person, and for that one say goes into depression. But by whether it is mental illness in terms of a hardware problem or a psychological shock or something, the end result sometimes manifests itself only through depression. And depressions may say again, like if it is an illness, if it is a hardware problem, then it has to be treated through chemicals and through, I mean to say, medicines and by doctors. And if it is a psychological thing, then of course there are psychiatrics, there are psychologists who are there, counselors to help the person. So one is that the youngsters should not equate every such outcome like a suicide as something which is ordinary. So, guys, if you are normal, if you are not having any mental illness, then don't even think about it. Just have sympathy for the person who had this kind of an outcome, who took his own life. Have sympathy for him. But then basically, he was not well. So don't think that you also will go the same way. You will not go the same way. You will find in your life many setbacks. Your girlfriend, your boyfriend may run away. You can have any number of setbacks. So chinta mat karo. You lead your life. Be happy. You will not suicide. Okay, but be conscious कि हाँ ऐसा हो भी सकता है कि there may be a psychological trauma where you will see that this is the end of road for me. So at that time,
you have to be conscious कि you should not get into a lonely phase. You have to be bold enough, brave enough, courageous enough. You know, it takes courage to ask somebody for help. You have to have be courageous. तो brave तो बनना पड़ेगा. डर के काम नहीं चलेगा. You have to be brave if you feel that you are feeling something bad, or if you are feeling some kind of a trauma, or you are getting some strange feelings, then you have to reach out to somebody. You have to be courageous and brave and say ki hello, I want to discuss this with you because this is my problem, can you help me? That takes courage. So my only message of, and the reason that I came here, I was curious to know what the youngsters are thinking. So I want to say, be courageous. Whether this is this or that, you will be finding answers. Your job, yes, you will not be. If you get into depression, you'll be not able to find solutions for yourself. You will be in feeling like you are in a dark cave and all those things. But before you get there, you have to be courageous to ask for help. कोई तो एक होना चाहिए to ask for help. And then don't judge people. बेचारे, I mean, you have to have sympathy. You have to, because that is illness also. I would say बहुत सारे reasons हैं. You can have several debates. I don't want to hog your full time, but because, for example, I'll say in Japan there used to be a trend. In fact, the generation that I come from, जापान में सबसे ज़्यादा achieving society थी. They would, if a boss ने बोल दिया, boss तूने अच्छा काम नहीं किया, your PowerPoint presentation is not up to the mark, the person will go. That is Japan. हमारे यहाँ बोल दे बॉम्बे में तो बोल कि ठीक है, the hell with you. The boss will end up committing suicide. So you have to be sturdy. You have to be courageous, right? Okay, thank you. Okay, yeah, Saurabh, you have some comment, please. I will just try to guess कि ये सुशांत के साथ क्यों हुआ होगा. So we have to understand कि या फिर ये कैसे अवॉइड किया जा सकता था. मैं एक पॉइंट बोलूंगा. सॉरी, मैं एकदम भूल रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था. टाइम चाहिए क्या याद करने के लिए? I'll come back once I recall. I'll come back. नीरज, नहीं पता नहीं यार, थॉट था एकदम से निकल गया. Somebody else. ऐसे ही होना चाहिए सुसाइड के समय. थॉट जो है निकल जाना चाहिए. Saurabh के पहले, I do not know the gentleman who was talking. It's absolutely sense, this Anuj. seeking the. Can you hear me? Yeah, we can hear. Yeah. See, seeking help is such a beautiful thing in today's world. What happens, I keep on interacting with many people for last 2 to 3 years who are really, how to say, they're kind of a chronic kind of a illness they're going through in their life. What I can understand, that I am not enough, I am not doing enough, though they are actually very good. But this feeling, that I am not enough, or I am not doing enough, I cannot be a happy person. So this sort of thinking, it all, like as he was rightly mentioning, that one is the physiological part and another is the psychological part. So psychological part is even a very big part in the depression. And it all is coming from, not from failure, but you will see many times it is coming from the successful people. I mean, it happens with the people who fail also, but it is not only with the people who fails. It comes with the people who are becoming successful also, equally. And rather, I should say, the chances of getting depression for the successful people or high achievers can be even bigger, because they create an expectation. So I was trying to think about it, and I think in Sushant's case, this 34 years old, and he has been successful. He was fighting it out. Everything was going good. But I think, too much importance to self, that I am the guy who will really do, and all those things. It comes with the high achievers, that kind of confidence is needed.
But when we give too much importance to ourselves, the problem starts happening. So there, if we can see something beyond our eyes, that look, whatever we are going with our five senses to the world, that's not everything. There is something beyond our eyes. And who gave us an entitlement that I have to be the best actor in the Bollywood? Who gave this entitlement? Who today? So people, like the discussion started with the choices, right? That choices, what choices I should make. Now the choice for getting a car or buying a house, these are all easy choices. Or, doing well in the career, becoming CEO in the company, or making a lot of money, becoming successful. These are all very easy choices, honestly. The harder choices is inside. And that's where we are going wrong many times. So now we are talking about that, what are the causes of this kind of psychological problems, right? So once we start thinking that, okay, I am something in this world, but I am not that important, that I have to give so much importance to myself. There is something else. There is society, there is a family, there are friends who are also equally important. Let us understand. So it is becoming a very selfish attitude which is causing this kind of choices. That's what I can say. Yes, Neeraj, your comment, please. I completely agree to Shama sir and Anuj sir, whatever they have said, कि बहुत सारे और रास्ते खुल सकते हैं आगे, थोड़ा बड़े दिल के साथ और थोड़ा सोचने की जरूरत है। जब हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जिसको एसएसबी बोला जाता है, तो एसएसबी इंटरव्यू का 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो उसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो स्पेसिफिकली विच व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी कम बैक अ बिट, ब्रेवनेस की बात हुई थी, so that's why I'm talking about it. So उस psychometric test में the main element which they try to judge is this societal कुछ मतलब उसके अंदर कुछ है element की नहीं है। और जितने भी कोशिश की जाती है कि जो भी उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है एसएसबी में, जो भी लोग पास आउट होके जाते हैं, तो वो कम से कम इस थॉट वाले नहीं होते हैं कि उनके अंदर सुसाइडल एलिमेंट होता है। लेकिन स्टिल जो ब्रेवनेस वाला फैक्टर है वो परमानेंट नहीं है ह्यूमन माइंड में। आर्मी में बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं। ऑफिसर रैंक के लोग जो एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में, वो सुसाइड करते हैं। तो ब्रेवनेस इज नॉट परमानेंट। आपको इसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और आपको इसके बारे में अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा विद टाइम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप में है तो है, क्योंकि कई बार सिचुएशंस इसको बदल देती हैं। That's one point. Second point I want to talk about specifically about Sushant is किसी ने बोला था फाइनेंस रिलेटेड फैक्टर्स की, फाइनेंशियल क्राइसिस और समथिंग लाइक दैट। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है 1-1.5 साल पहले का। असम में फ्लड्स आई थी, तो मैं उनको फेसबुक पे फॉलो कर रहा था उस टाइम पे, पता नहीं मैं मतलब कुछ मैंने देखा कहीं पे, तो किसी बिहार से किसी लेडी ने उनको लिखा कि असम में बहुत बुरा हो रहा है, मेरे कुछ जानकार हैं वहाँ पे, ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं कुछ देना चाहती हूँ असम के इस फ्लड्स में, किसी तरह से योगदान देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ। सुशांत ने तुरंत वापस ट्वीट किया कि मैं आपके नाम से 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करेगा। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। और केरला फ्लड्स में भी उन्होंने 1.25 करोड़ के राउंड का कंट्रीब्यूशन किया। जहां पे भी उनको दिखता था वो कर देते थे, तो कहीं फाइनेंशियल फैक्टर वाला नहीं था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ा स्पेसिफिकली बोला था, मेरे को याद है बड़े अच्छे से, मैंने सुना था कि मेरे पास इतना पैसा हो गया कि जितने की मुझे जरूरत नहीं है। और वो अलग ही मतलब फाइनेंशियली तो मेरे को नहीं लगता किसी भी हिसाब से उनका कोई इस तरह का फैक्टर हो सकता है। एक बहुत बड़ा सा उन्होंने टेलीस्कोप लेके रखा हुआ था, जो अभी कुछ लोगों ने सुना भी होगा,
हाईली जो साइंटिफिक वाला जो होता है टेलीस्कोप, और जो हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी है उसको स्टडी करते रहते थे पूरी रात रात भर बैठ के। उन्होंने एक अपना सितंबर 2019 में उन्होंने हैंड रिटन नोट्स इंस्टाग्राम पे डाले थे, जिनमें उन्होंने अपने 50 ड्रीम्स के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने मतलब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस तरह का आदमी भी ऐसा कर सकता है क्या। उन्होंने लिखा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता हूँ, मैं अंधे लोगों को कोडिंग सिखाना चाहता हूँ, मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बच्चों की एजुकेशन, मतलब पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें, और बहुत साइंटिफिक, मतलब एक रेस्निक हैलिडे करके एक फिजिक्स की बुक है, अगर कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से है, रेस्निक हैलिडे के बारे में लिखा है कि मैं वो पूरी बुक फिनिश करना चाहता हूँ। तो कब क्या बदल जाता है जीवन में, आपकी ब्रेवनेस कब खत्म हो जाती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो कीप प्रैक्टिसिंग और सोचते रहिए, और हमेशा बात करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे भी दिक्कत है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को अगर कुछ भी अगर दिमाग में है, मैं फ्री हूँ, मेरे को फोन कर लो कभी भी, रात के 12 बजे भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट, नीरज ने ये बात बोले बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने दोस्तों को, अपने एलुमनाई हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल हो, इवन पड़ोसियों को भी, मुझे लगता है कि मेरा पड़ोसी भी लगता है कुछ डिप्रेशन में जा रहा है या टेंशन में है, तो आई शुड गो एंड आस्क, टॉक हेलो कि हाय जॉन, हाय अमित, हाय विजय, कैसे हो, हाउ आर यू। दैट इटसेल्फ विल डू वंडर्स। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, इतना ज्यादा हमारे अंदर ईगो हो जाता है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, या मैं तो इतना बड़ा आदमी, मैं उसको क्यों बोलूं, मेरा उससे क्या काम। नहीं, पूरी दुनिया आपकी फैमिली है, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, छोटा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम, इट्स आवर जॉब टू आस्क। सब लोग का सेम नहीं होगा, कुछ लोग सबसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जब भी जाऊं तो सुशांत के केस में ही वॉज अ रियली ग्रेट गाय। मैं पर्सनल उसको बताता हूँ कि मेरा अपना ब्रदर इन लॉ, उसका क्लासमेट था सेंट कैस को, मैंने फोटोज भी भेजी शायद, तो द होल क्लास यूज्ड टू लुक अप टू मेरा क्लास, वो मेरा जो भाई है वो उसका क्लासमेट था, लेकिन उनके लिए सुशांत वाज ए हीरो, आइकॉन। खेलने में भी अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, सब कुछ में अच्छा था, तो एस्पिरेशन था कि सुशांत जैसा बनना है। तो जो आदमी इतने लोग को इंस्पायर किया, तो सुशांत को तो मैं कभी बोल ही नहीं सकता हूँ कि उसने गलत किया, गलती हो गई उससे, कारण सोसाइटी थी, उसकी खुद की सिचुएशन थी, या क्लिनिकल डिप्रेशन था, अगर उसके पड़ोसी लोगों ने या उसके दोस्तों ने, जिन लोगों को भी पता था, उन लोगों ने उसका इलाज नहीं कराया, इंटरवीन नहीं किया। उसकी शायद सिस्टर उसके हेल्प कर भी रही थी, लेकिन नहीं किया, तो उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, या प्लेन फ्लाइट मैं चला रहा हूँ, दुनिया जो भी हो जाए, मैं वेदर को और ट्रैफिक को ब्लेम कर दूं, अल्टीमेटली जिसने धक्का मारा वो रिस्पॉन्सिबल है। सुशांत ने धक्का मारा, बहुत महान आदमी था, बहुत अच्छा इंसान है, बट ही हिट हिमसेल्फ, he killed himself, and he killed himself. सुसाइड को मैं किलिंग ही बोलूंगा। Yes, sir. You have some comment, please. Atul, there's one more thing which I will like to, say, Vishal, that is also very important, that, these days I am seeing Facebook पे सब जगह सुशांत छाए हुए हैं, and yes, we all have sympathy, we all feel bad, but then because of the youngsters who are there, I want to tell them that life में the first responsibility of you yourself is to keep yourself happy. First responsibility is that. तो अगर कुछ इतना ज़्यादा है, तो इतनी नेगेटिविटी आजकल फैशन हो गया, पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू सुशांत आर पोस्टिंग हिज पिक्चर्स एंड सेइंग, गिविंग ट्रिब्यूट्स टू हिम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इससे क्या है, एक पूरा सोशल माहौल में दुख पैदा हो रहा है, विद द रिजल्ट that I can guarantee in the next 2-3 days you will hear some fans, poor fans, who are not so mentally strong, they may also jump out of the window. So nowadays the youngsters should take notice that they have to also learn the art of detaching themselves from the unhappinesses, from the so much sadness which is there in the society for so many reasons. कुछ भी हो सकता है, आज सुशांत की हुई, कुछ और इरफान का हो गया था कुछ दिनों पहले, एंड दैट वाज नॉट अ सुसाइड, दैट वाज अ नॉर्मल नेचुरल डेथ। लेकिन इस टाइप के दुख तो होते रहते हैं। पॉइंट इज दैट यू हैव टू आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम दीज सैड हैपनिंग्स, सो दैट यू आर एबल टू कीप योरसेल्फ buoyant, because your first responsibility is to yourself. ठीक है, आप दुख मनाइए,
लेकिन know how to detach yourself from that. That is also very important. So this something also is very इस पे personal that आते I हैं हेलो want to express. now हेलो detail अनुज सर पे हम थोड़ा कमेंट करना चाहेंगे। एक्चुअली देखिए इसके केस में हुआ क्या, आप शायद उसका एक मूवी नहीं देखे होंगे, छिछोरे करके आया था, ठीक है, और बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत यही बतलाया था कि लोगों को वो सुसाइड नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब लोग सोच रहे हैं कि जो आदमी मूवी में इतना बड़ा मैसेज दे रहा है, हर चीज कर रहा है, वही आदमी आज खुद सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा शेयर करने का ये भी। Yes, Mr. Rahul wants to have some comment. Please, Mr. Rahul. Yes, sir. Good evening, everyone. Yeah, good evening. मैं एक्चुअली कुछ तो साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, so it is very difficult for me to comment. But purely from a personal experience, the closest thing which I have seen to suicide is मेरे एक friend के father थे. He met with an accident, और उसके बाद he was unable to go to his office and he used to stay at home. तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए, and then after 3 to 4 months he jumped from the terrace and he committed suicide. So he had just one son, wife भी है, no fight in the family, everything was fine. मुझसे भी वो एक दो बार ड्यूरिंग डिप्रेशन मिले थे। मेरे फ्रेंड ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई वो डिप्रेशन में चले गए। तो जब भी हमसे मिलते थे तो पूछते थे, बात करते करते अचानक से कि यार मेरे में से गंध आ रही है क्या, या मैं देखने में ठीक तो लग रहा हूँ ना। तो मुझे जो लगता है, आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आप कभी छत के एज में जाके खड़े हो और आप सोचो कि मेरे को जंप करना है, बहुत हिम्मत चाहिए ये स्टेप लेने के लिए। किसी भी आदमी का जान लेना, और स्पेशली अपना जान लेना, मतलब उस मोमेंट पे उस आदमी पे क्या बीत रहा होगा कि he has taken this मतलब इतना बड़ा स्टेप कि भाई मेरे को, देखिए उसके दिमाग में सब आ रहा है, फैमिली फ्रेंड्स सब आ रहे हैं, फिर भी उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा भयंकर आया है कि मेरे को यार अपना लाइफ खत्म करना। एंड स्पेशली जैसे मैं इनका बता रहा हूँ कि इट वुड हैव बीन सच इवन पेनफुल कि बॉस मैं जंप करने वाला हूँ, ही नोज इट इज पेनफुल फॉर हिम। It's not like I'm swallowing some pills and then I'll at least have a clean death. यहाँ पर तो he knows that I'm going to fall down and it's going to hurt me a lot and I'm going to create a mess around for me. People, it's going to be difficult for my family to look at me after that. फिर भी उन्होंने ये स्टेप लिया। So I think बात करना ये सब चीज जरूरी है, but I think depression is like COVID-19. फ्लू है, बट वो ऐसा फ्लू है जिसका इलाज इज नॉट पैरासिटामोल। पैरासिटामोल से आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बट आई थिंक डिप्रेशन इज समथिंग व्हिच आई थिंक एज ऑफ टुडे इज अ लाइलाज बीमारी, एंड वी एज अ सोसाइटी नीड टू एडुकेट नॉट जस्ट अवर चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा भी एक 8 साल का बच्चा है। कल सुशांत सिंह का सुना तो मेरे को भी सबसे पहले उसी का चिंता हुआ, यार ही इज नाउ गोइंग टू एंटर हिज टीन्स, गॉड नोज क्या करने वाला है। But I think we need to look at how we deal with this situation, not just by कि आप बात करो, express करो. There has to be other ways of dealing with it. Experiences in life. I think सुशांत सिंह से ज़्यादा experience किसको हुआ होगा life में? बंदा engineer भी था, almost I think last year में drop out किया था. Was virtually a go-getter. बट देन सुशांत सिंह को आप भूल जाइए। एक और कुछ साल पहले एक या 2 साल पहले एक और एक्टर ने ऐसे ही सुसाइड किया था। दैट गाय वाज इन अ मूवी लक्ष्य, उसमें उसने एक छोटा रोल किया था। सो इट्स नॉट लाइक कि दीज गाइज आर डाइंग बिकॉज और कमिटिंग सुसाइड बिकॉज कि उनके लाइफ में कुछ डिप्रेशन है, या डिप्रेशन इन द सेंस कि कुछ प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है यार वो सब मैनेजेबल है। I think this is a grave illness which needs to be treated far more seriously than just कि आप बात करो, आप फैमिली के बारे में सोचो, या
you are committing a murder. It is, I think, on a scale of 1 to 10, committing suicide on a scale of bravery has to be one of the bravest thing one can do, because it is very difficult to do, boss. और उसके लिए एक अलग तरीके का जुनून, एक अलग टाइप का दिमाग में कुछ ऐसा हुआ है कि बॉस हम करके रहेंगे वो चीज. दिस इज राहुल, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग. आपने जो बोला ना बहुत डिस्टर्बिंग लगा मुझे. नहीं सर, आप ये डिस्टर्बिंग है. सुसाइड इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिस्टर्बिंग प्रोसेस. नहीं, मैं उसके सुसाइड की बात नहीं कर रहा, आपकी बात को डिस्टर्बिंग बोल रहा हूँ. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग एंड वी शुड नॉट टेक इट लाइटली. हाँ, नहीं तो मेरा जो पॉइंट है सुन लीजिए. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास कार है, कार आप चला रहे हो, अब कार चलाकर आपने एक्सीडेंट किया, आपकी जिम्मेवारी है. आपके भी अब चोट लगेगा, आपके भी जान जाएंगे, बट जिम्मेवारी आपकी है. दूसरों को मारा, मर्डर है. आपने खुद को डैमेज किया, वो भी है. अल्टीमेटली 100% रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, सिंस यू आर द ड्राइवर. तो सर हमारी जो बॉडी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ सर, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि इट इज फार इजियर टू किल एनीवन एल्स. आप मेरे को समझ में आता है सर, ना मैंने सुसाइड करने का कभी मेरे दिमाग में आया, ना मैंने कभी किसी को मारने का भी सोचा. जो मेरे को समझ में आया सर, एज अ टोटल नोविस, एंड आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ, लाइक आई सेड, नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उस टाइम आप अपने ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी और के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हो. तो जो मेरे को समझ में आया कि यार उसके जीवन में कुछ होता है तो होने दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. थोड़ा बहुत ऐसा एटीट्यूड, मतलब ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू इमेजिन. यार मेरे सामने तो कोई किसी को मारे तो बात, मतलब मेरे को तो कोई आदमी किसी दूसरा आदमी को डांटता है तो उसी में मेरे को दया माया आ जाता है, आंख से आंसू निकलने लग जाता है. यार ये क्या बात करने का तरीका है. आई एम प्रीटी श्योर कमिटिंग अ मर्डर इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, बट सर इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन योरसेल्फ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये सोचिए सर, आप अगर खुद चले जाओगे इस दुनिया से, आपके नियर एंड डियर वंस का क्या होगा. एग्जैक्टली. तो आप अगर आप वो इतना, मतलब उस पेन को आप सहन करने के लिए रेडी हो, और सेल्फ इन्फ्लिक्ट है सर, आप किसी और को मार रहे हो. सहन आप नहीं करो ना, आप तो जा चुके हो. पेन तो दूसरों को देके जा रहे हो आप. सर उस मोमेंट पे तो उसका दिमाग में चल ही रहा है ना कि यार, मतलब कि आप ये सोचिए ना सर कि आप उस बाप को भी छोड़ दे रहे हो, उस बाप का भी साथ छोड़ दे रहे हो जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया. कितना बड़ा बात है सर ये चीज, कितना बड़ा बात, कितना गंदा बात है, कितना छोटा बात. वही सर की, मतलब छोटा बात है ये. बार इसको ग्लोरीफाई मत कीजिए. मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्लोरीफाई एकदम नहीं कर रहा हूँ सर, आप मेरा बात को गलत ले रहे हैं. मैं एकदम ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस चीज हो रहा है सर यहाँ पर. हाँ, सीरियस. मतलब एक आप ये समझ लो कि मैं रास्ते में खड़े एक आदमी को गोली मार रहा हूँ, वो अलग चीज हो गया. यहाँ तो सर इट इज लाइक नहीं, वही चीज है, कोई अंतर नहीं है. नहीं मैं बोल रहा हूँ 9/11 वाला, ये सर 9/11 जैसा इंसिडेंट है कि जहाँ पर हम सीधे सीधे प्लेन ले जाके भिड़ा दे. ये बहुत बड़ा बात हो रहा है सर. और ये आजकल, और ये सुशांत सिंह राजपूत ने तो सर ये हाईलाइट किया है. बट आजकल मैं सर मेरे दूर के मतलब आई यूज्ड टू वर्क विथ हिम वंस, अभी तो आई एम नॉट वर्किंग विथ हिम सर. उनकी क्लास 9 की एक बच्ची क्लास 9 में पढ़ती थी लास्ट ईयर. शी कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग, एंड सर शी लेट गो ऑफ हरसेल्फ. मतलब इट इज नाउ बिकमिंग अ पेंडेमिक इन इटसेल्फ, एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड वेरी वेरी सीरियसली. मैं कुछ बोलना चाहूंगा. यस सौरभ प्लीज. सर बस मेरा यही कमेंट था, बस मैं और कुछ नहीं ऐड करना चाहता. इट्स जस्ट कि इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन द Okay, sure. ठीक है. So basically coming back to my point कि I'm just trying to guess कि सुशांत ने ये क्यों किया होगा. So everyone knows कि हमारा subconscious mind होता है, and the decision which we take is on the basis of something which is there on our subconscious mind. Maybe it is 5 years back, कुछ मेरे mind में कब वो trigger होगा मुझे नहीं पता. तो for example कुछ incidents बताता हूँ मैं. उनकी मदर नहीं रही सुशांत की, उनकी सेक्रेटरी का सुसाइड हुआ लास्ट वीक. उनका जो मूवी था वो सुसाइड के ऊपर था, छिछोरे. 11 जून को, मतलब 4-5 दिन पहले, उनकी गर्लफ्रेंड जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनका एंगेजमेंट हुआ. इरफान खान जो उनकी तरह एक मेथड एक्टर थे, उनका भी देहांत हुआ. सो आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स कि सुशांत के माइंड में क्या चल रहा है. एज इट इज वो डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ सो मेनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस. एंड देन ये सारे, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दीस रीजंस कि एक के बाद एक उनके साथ गड़बड़ होता जा रहा है.
and maybe his decision was a reaction to all these things. If we connect कि यार मम्मी भी नहीं रही, सेक्रेटरी भी नहीं रहा, मूवी में भी सुसाइड था, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई, इरफान भी नहीं रहा, so maybe this is one thought. Second, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, हमने आज पूरे दिन में सोल्यूशन की बात नहीं करी, बट मैं सोल्यूशनिंग पे टच करना चाहूंगा. लेट्स अज्यूम कि ये कोविड का सिचुएशन नहीं होता. हम सबको पता है कि जब भी हम नेगेटिव होते हैं, मतलब कि नेगेटिव एटमॉस्फेयर को खत्म करने के लिए यू नीड पॉजिटिव पीपल, यू नीड पॉजिटिविटी इन एंड अराउंड यू. और हम सबके लाइफ में द ओनली पर्सन हु विल ऑलवेज मोटिवेट यू 99% ऑफ टाइम विल बी योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स और योर वाइफ और योर किड्स, योर फैमिली बेसिकली. और कोविड के टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन था और वो नहीं आ जा सकते थे, तो शायद अगर वो आज घर पे होते या उनके घर में उनके पेरेंट्स होते, तो आई थिंक दिस सिचुएशन वुड हैव नॉट बीन, मतलब इट वुड हैव बीन अवॉइडेड. दिस इज अगेन अ हाइपोथेटिकल थॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो होते तो वो जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते और ये नहीं होता. ये एजेंडा पॉइंट भी है हमारा इनफैक्ट, कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो लोग अकेला अकेला रहने लगे हैं आजकल, is that also a reason for depression? Yes, Mr. Ravi wants to add something. एक मिनट बस मैं लास्ट चीज बोलना चाहूंगा. लास्ट चीज मेरा ये है, हम सब बोल रहे हैं कि सुसाइड वो लोग करते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, which is 90% fact, but there is a concept called suicide bombers. वो मेंटली इल तो नहीं होते हैं मेरे ख्याल से, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, या उनका अपब्रिंगिंग वैसा किया जाता है कि एक दिन उनको अपने देश के लिए जान देना है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट सुसाइड बॉम्बर्स पे भी हम बात कर सकते हैं कि वो क्यों ये करते हैं. दे आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, बट दे कॉन्शियसली आर ट्रेन्ड टू डू दिस और दे डू इट, एंड इट इज देयर सेल्फ डिसीजन. तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, मैं उसी पे वापस आ रहा हूं कि क्या हम अपने मर्जी से सुसाइड कर सकते हैं, तो आंसर इज यस. Yeah, Mr. Ravi have some comment, please. तो एक तो पहले मैं राहुल के कुछ बातों से डिफर करता हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला ब्रेवरी की बात, नहीं, उसमें अतुल सर का बात काफी वैलिड है. ये ब्रेवरी नहीं है सुसाइड, इट्स नेवर बी. क्योंकि जैसा सौरभ, ब्रेवरी में भी रॉन्ग टर्म, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या पागलपन छाया होगा उसके दिमाग. ब्रेवरी इज अ रॉन्ग टर्म. सर क्रेजीनेस बोल सकते हैं, वही मैं क्रेजीनेस, लेवल ऑफ क्रेजीनेस टू अ डिफरेंट लेवल. करेक्ट. Yes, Ravi, please. That is what in the beginning also I said कि जब डिप्रेशंस का वो माहौल चालू होता है, तो that leads to that sense कि जहाँ पे आप कुछ फील ही नहीं करना चाहते, या फिर मतलब आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आप नहीं फील कर पाते हैं. तो हम जब नॉर्मल रहते हैं तो we feel the pain, लेकिन जब आप एबनॉर्मल लोगों को देखेंगे, फिर एबनॉर्मल मेंटलिटी में जब लोग जाते हैं, तो दे डू नॉट फील द पेन. दैट इज द प्रॉब्लम विथ माइंडसेट. एक दूसरा, सौरभ ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बताया है. तो मेरा ये कहना है उस पे, किसी सुसाइड का मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट 100%, 99% केसेस में पर्पस ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है. इसीलिए आज खास करके ये जो एजुकेशन सिस्टम्स में सुसाइड्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं इंजीनियरिंग के दौरान या आफ्टर कोई रिजल्ट्स आने के बाद, या नहीं हुआ, तो वो मोर ऑफ द टाइम्स पर्पस ऑफ लाइफ वो वहीं तक, पता नहीं, उसी को बहुत बड़ा बना लेते हैं, और वो नहीं फुलफिल होने के कारण में दे टेक द डिसीजंस टू एंड अप. तो हमेशा भी अपने जनरेशन से द पर्सन्स हु इज लिविंग अराउंड यू, और जो भी इस प्रॉब्लम, मतलब एनी प्रॉब्लम हु कमिंग इन, उनका अपना पर्पस ऑफ लाइफ शुड ऑलवेज बी लार्जर देन एनी अदर एक्टिविटी व्हिच ही इज डूइंग इन हिज लाइफ, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ एंड नहीं हो सकता है, इट्स नॉट टू डाई. एक बहुत अच्छा बोला रवि जी. और एक बहुत फेमस बुक है नाजी के, जब कंसंट्रेशन कैंप में देयर वाज वन गाय वो बच के, उनकी किताब हो गई दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेमस बुक है. उसमें किताब था मैन सर्च फॉर मीनिंग. तो आदमी को मीनिंग चाहिए होता है, पर्पस चाहिए होता है, जिसके चलते आदमी नाजी कैंप में भी सालों साल तक रह रहा है, अत्याचार तरह तरह का टॉर्चर भी हो रहा है, फिर भी क्यों? क्योंकि दे हैड ए मीनिंग कि इसके बाद कभी न कभी ये खत्म होगा, फिर जाकर मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, आई विल डू समथिंग. तो ज्यादातर लोगों के पास पर्पस होता है ना, तो दे विल फाइंड अ वे नॉट टू किल देमसेल्व्स, कितने भी खराब सिचुएशन में. सुशांत के केस में ऐसा नहीं था. ही वाज रियली डूइंग लॉट ऑफ गुड स्टफ और काफी कुछ मीनिंग था पर्पस में. मेनली सिकनेस जो बोला शुरू में कुछ लोगों ने कि ही वाज सिक, डिप्रेशन इज अ बीमारी, तो बीमारी था
तो बीमारी का साइड है, तो उसका इलाज करना चाहिए था हमको, और लोगों को ठीक से पता नहीं चला, ग्रेविटी दवा खा भी रहा था तो हमें बीमारी ठीक से पता नहीं कितना सीरियस बीमारी है, कितनी ज्यादा बीमार है, लोगों को पता नहीं चला। और बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट कि अपनी फैमिली और कोई साथ में नहीं था उनके पास, बिकॉज ऑफ कोरोना या बिकॉज ऑफ एन अदरवाइज सक्सेस के साथ आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हो थोड़ा अकेले भी हो जाते हो, तो मे बी माइट बी अलोन। माँ भी उनके 19 साल पहले मर गई थी जिनसे बहुत क्लोज थे। रीजंस बहुत सारे हैं, बट द एंड ऑफ इट कि इट वाज अ murder of Sushant by Sushant, and ultimately the credit or blame goes to Sushant. सोसाइटी का रोल रहा होगा, फिल्म इंडस्ट्री का रोल, वो सारे साइड कैरेक्टर्स थे। इस फिल्म का मेन जो विलेन जो था, हीरो भी सुशांत, विलेन भी सुशांत, बाकी सारे लोग साइड एक्टर्स और कोई नहीं। बीमारी डिप्रेशन वाज द मेन रीजन कि क्लिनिकली बीमार था, बट ही मर्डर्ड सुशांत राजपूत, मर्डर्ड सुशांत राजपूत, मेनली दैट इज द केस एंड ही शुड बी ही इज डेड। तो उसको तो हम लोग कानूनी सजा भी नहीं दिला सकते, बट फ्यूचर में इस एक्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। मर्डर इज अ मर्डर एंड सुशांत ने मर्डर कर दिया। सुशांत ने अपना ही नहीं किया मर्डर, बहुत सारे अपने फैंस को भी उन्होंने थोड़ा 0.01% अपने फैंस को भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, अपने फैमिली को दुख पहुंचाया। तो वो भी गलत किया, सुशांत ने गलत किया। गलत को जस्टिफाई करना आई डोंट थिंक राइट। हमें क्या करना था, कोई बीमार है तो उसका इलाज करना। सुशांत का इलाज ठीक टाइप से नहीं हो पाया, दैट वाज अ प्रॉब्लम। सेजल, you have some comment? अतुल सर कौन करेगा इलाज? हाँ, ये इस पे आते हैं। आई थिंक इलाज पे तो ये बात ही नहीं की है, तो यस सेजल प्लीज। ओके सर, पहली चीज मुझे जिसने भी ये पॉइंट रेज किया था कि जो सुसाइड करने वाला बंदा होता है उसमें बहुत गट्स होते हैं, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट टू गिव योरसेल्फ पेन, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से। और सर जो अतुल सर मर्डरर्स की बात कर रहे हैं, तो सर जो गैंगस्टर होते हैं बड़े बड़े, वो बहुत डरते हैं, मतलब वो किसी की भी जान ले लेते हैं, बट वो इतने बॉडीगार्ड्स अपने आसपास रखते हैं क्योंकि दे आर वेरी अफ्रेड टू लूज देयर लाइफ। एंड थर्ड पॉइंट में जो सौरभ सर ने रेज किया था, सबकॉन्शियस माइंड, मैं थोड़ा सा इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करूंगी कि जिस थॉट को हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और कुछ लोग पॉजिटिव थॉट्स को करते हैं, बट ऑन अदर साइड लोग नेगेटिव थॉट्स को भी करते हैं। तो जो इंसान के माइंड में अगर ये पॉइंट आ जाता है कि आई वांट टू डाई, और अगर वो इस थॉट को कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट करता रहता है, तो इट बिकम्स अ रीजन टू डाई। और सर मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी, जो काफी पहले बात हो रही थी सक्सेसफुल पीपल के सुसाइड कमिट करने पे ज्यादा होते हैं। हाँ जी सर, तो उसके ना मेन 3 रीजंस होते हैं। एक तो इनसिक्योरिटी ऑफ देयर ओन पोजीशन, कि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं अपनी पोजीशन खोने से, लूजिंग देयर फेम। सेकंड रीजन इज कंपैरिजन, एंड थर्ड रीजन इज लोनलीनेस। Okay, sir. Okay, yeah. Mr. Hari, you have some comment, please? Yes. Am I audible? Yeah. Yeah. So I just want to put forth few examples where there is like first thing, in my childhood, I have come across a few people doing such type of act. Like one of my known person, he was an engineering, like he had taken admission in engineering. He was much older to me, that guy. So उन्होंने अपने खुद की मर्जी से सुसाइड कर दिया, but the reason was ultimately not known. So this puts a very big question mark to the people around him. उनके पेरेंट्स को पता नहीं है क्यों किया गया ऐसा, उनके मदर को भी नहीं पता, ना तो उनके सिस्टर को पता है। सो ये उन्होंने अपने ही मन में कुछ बात रख के, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपेंड, इवन आई डोंट नो व्हाई दे डिड लाइक दैट। तो ये क्वेश्चंस जो है हमेशा दे कीप ऑन कमिंग। आपके जो लव्ड वंस है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, वो लोग सोचते रहेंगे हमेशा व्हेन यू डू सच टाइप ऑफ एक्ट। सो ये एक चीज हो गया।
the next example is recently I read in one of the newspapers like an IS officer in Mumbai, he committed suicide. Yes. So administrative services में आपको job है, you are having an experience of almost 15 years. उनको भी 15 years का experience है. But he is just because he was getting shuffled every now and then, उनका transfer होते रहता था, or he was not able to get into politics, but ultimately he decided to end his life. So power doesn't mean that you cannot suicide. अगर आपके पास power है, you have money, still there is a chance that you can do such. Your brain can think in that way, right? Hello. Yeah. I'm audible. Sure. Yeah. Yeah. So yes. So यहाँ पे we should give it a psychological thing. We should understand कि brain is very powerful, and brain, what we think, we do in the same way. What we if we think of negative things will happen. If we think of positives will come in our life. And secondly, one more thing I want to add: taking medicines is not at all a solution to psychological problems, because वो भी किसी ना किसी तरह के controlled drugs होते हैं. This is a drugs that is same as used for parties में वगैरह जैसा drug use होता है, same type of drugs but in a controlled manner. So it is not advisable to take such things because it affects the brain in long term. So better is you have to work on your own lifestyle और own thinking पे ही हमको work करना चाहिए. और one more thing कि इसमें coming to Mumbai और ये जो metro cities में life इतनी fast हो गई है कि people don't really know who is staying to the besides them. उनका neighbor कौन है वो भी नहीं पता होता उनको. एक साल बाद पता चलता है कि यार अरे ये यहाँ पे रहते हैं क्या. ओके. सो इतना बिजी लाइफस्टाइल है, प्लस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, इसमें बहुत ज्यादा गैप होता है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है, रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है. सो पीपल लाइक इवन इन केस ऑफ जैसे सुशांत सिंह के भी एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो काफी बहुत सारे थे, बट मे बी समवेयर इज नॉट एबल टू रियली लिव अन टू हिज एक्सपेक्टेशंस. तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, इसमें जितना कम गैप होगा उतना तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. Aman have some comment. Yes, Aman. यस सर, मेरा एक चीज था कि आखिर ये डिप्रेशन, ये ब्रेन थॉट्स, ये सारी चीजें आखिर प्रॉब्लम आती क्यों है. तो मैंने एक चीज देखा कि जो रॉ मटेरियल्स होती है, लाइक जैसे कि अगर हमें अच्छा खाना बनाना है या फिर कोई भी चीजें करनी है तो हम क्या करते हैं, बेस्ट रॉ मटेरियल्स लाते हैं. हमें सब्जी बनाना तो हमें भिंडी अच्छे रॉ मटेरियल्स के चाहिए. हमें अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल बनाना है तो हमें उसके रॉ मटेरियल्स अच्छी चाहिए, सुपीरियर चाहिए, तभी वो बिल्डिंग या फिर कोई भी चीजें अच्छी बन पाती है. बट अगर वही माइंड थॉट की बात करें तो हमें उसके लिए, या फिर अपने जो माइंड के लेवल की बात करें तो वहां पे हमें अच्छे थॉट्स चाहिए. लाइक हमें उसके रॉ मटेरियल जो है हमारे माइंड के लिए वो थॉट्स होता है, वो हमारे आसपास की चीजें जहां से हम गेन करते हैं. तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि रॉ मटेरियल हम कैसा यूज कर रहे हैं. और इस यही चीज में मोस्ट ऑफ द आजकल यंगस्टर्स हुए या फिर कोई भी पीपल हुए यही मार खा जा रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कुछ भी चला के देखने लगते हैं, और टीवी देख रहे हैं तो कुछ भी ये चल रहा है, कभी सुसाइड का चल रहा है, कभी कोविड-19 चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है. हम रॉ मटेरियल जो हम लोग एक फिक्सेशन ही लग रहे हैं, हम कुछ भी मतलब भरते जा रहे हैं, कोई कचरा है, कोई भी चीज हम रॉ मटेरियल अपने माइंड में डालते जा रहे हैं और वही सारी चीजें आगे चल के रिएक्ट हो जाती है, और जो कि आपका जो है वही पॉइजन का काम करती है आपके माइंड के लेवल पे. लाइक अगर हमें एलर्जी है कोई चीज से, सब्जी, तो हम अपने उस चीज को नहीं खाते हैं, बट एज ए माइंड के लेवल पे हम कुछ भी ले लेते हैं. दूसरी चीज ये है कि अगर यही चीज बात करूं मैं कि अगर ये सुशांत हाई प्रोफाइल केस नहीं होता, पूरे इंडिया में अभी तक इसके बारे में कोई भी टॉपिक्स पे टॉक नहीं हो रहा होता. लाइक अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के बाद कैसे जॉबलेस या फिर कोई भी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कितने सारे सुसाइड्स होते हैं, हमने कभी डिस्कशन या कभी नहीं सुना होगा अभी इसके
केवल स्पेसिफिकली माइंड प्रेशर और डिप्रेशन के लिए स्पेशल एक वेबिनार या फिर कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है। बट आज इतना हाई प्रोफाइल केस हुआ है तो हम आज इस पे बात कर रहे हैं, तो इससे काफी सारे लोगों को ये चीज मिलेगा कि आखिर क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। दूसरे हरी सर ने एक पॉइंट उठाया था कि आजकल टाइम ही नहीं है लोगों के पास ये सारी चीजें सोचने के लिए, वो इतना बिजी हो गए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो एक काफी अच्छे कोर्स थे, कहा था किसी ने कि जब आपको लगे कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने लिए, तो तभी वही सही टाइम है कि आप कुछ अपने लिए टाइम निकालो और मेडिटेट करो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू से। तो आई थिंक अबाउट दिस। थैंक यू। Yes, sorry, you have some comment. I think it is, let me add one line. Ki what we feed to our body and our brain is very important. I think, yeah. Yes, sorry. Please. Closing remarks, probably. मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लास्ट स्पीकर ने जो कहा, मैं उससे कंप्लीटली अग्री नहीं करता हूँ। आई थिंक जैसे उन्होंने बोला कि हम कुछ गलत चीज यूट्यूब में देख लिए या कुछ गलत चीज सुन लिए, आई थिंक ये जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। सो मैं क्विकली बोलूंगा बिकॉज आई थिंक वी हैव रीच्ड द टाइम लिमिट। तो बचपन में हमारा स्कूलिंग हुआ, स्कूल में लेट्स से हम प्री नर्सरी की बात कर रहा हूँ, माँ बाप के बीच में लड़ाई होता था और बच्चा उससे कुछ उसके दिमाग में बैठा, उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल में वो बच्चा अकेले रहने लगा, टीचर डांटने लग गई, बच्चे उसे बुली करते थे। उसके बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज में जाके उसका बहुत भयंकर तरीके से रैगिंग हुआ। उसके बाद वो कॉर्पोरेट में गया, कॉर्पोरेट में मे बी ही वाज नॉट अ गुड परफॉर्मर, उसको 2-3 बार निकाला गया कंपनी से। एंड देन ही गॉट मैरिड में जाके वाइफ के साथ बहुत क्वारल होने लग गए, बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। सो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स which keeps building the negativity and then it results into a disaster situation like this. ये मैं बोलना चाह रहा था, ना कि सिर्फ हमने कुछ YouTube में देख लिया और कुछ देख लिया और हमने सुसाइड कमिट कर लिया। आई डोंट थिंक ऐसा नहीं है। मैं रॉ मटेरियल बोलना चाहता हूँ सर, रॉ मटेरियल। जैसे कि आपने बोला कि हमारे साथ सीधा नेगेटिविटी होते चाहिए, बट हमने उस समय ये कोई पॉजिटिविटी वाला चीज नहीं देखा कि हमें उसको हैंडल कैसे करना है। हमने क्या देखते गए कि हमको नेगेटिव, यूट्यूब मेरा बस एक एग्जांपल था, बट मेरा मेन चीज था रॉ मटेरियल हम कैसा ले रहे हैं, अपने आप के गेन कैसे कर रहे हैं। हमारे पास अगर सारी सिचुएशन हमारी उल्टे होते जा रही है तो हमने ऐसा कोई, दैट इज नॉट इन आवर हैंड ना। अगर मेरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरे माइंड में तो नेगेटिविटी फैल रहा है, मेरे दोस्त मुझे बुली कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरा बॉस जॉब से निकाल रहा है तो मैं क्या करूं। यही चीज के लिए तो काफी सारी चीज इसी हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं ना, इसके लिए डिप्रेशन हम लोग कैसे बाहर निकले। ठीक है, इसमें विशाल लेट मी ऐड वन थिंग हियर। ओके श्योर। यू नो, तो इसमें टाइम हो गया आपका, so इसमें we will talk because it's a very big subject honestly and yeah sure we'll continue tomorrow. मैं थोड़ा सा ये चीज बोल रहा था, आई थिंक लाइक सौरव ने बोला चाइल्डहुड वाला चीज, मन ने भी जो बोला, एक्चुअली आधा अधूरा बात हुआ दोनों जगह। it's actually probably from my point of view it's actually much more bigger and things start from childhood and you know it continues accumulates, like सौरव ने बोला कि बहुत बचपन से बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, so that can act as a shield also, that can go in the other direction also, and we'll try to understand this only कि बचपन से जो series of events होते हैं हमारे लाइफ में, how does that affect, and probably we can find a very concrete solution to this कि बचपन से क्या करना चाहिए बच्चे के साथ कि वो इस तरह का डिसीजन नहीं ले। ठीक है, okay, so we'll continue tomorrow. Yeah, okay. Thank you very much for your time. Good night. Thank you.